Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today I'll teach you accounts. We will learn about what is accounting, why it is needed, what is its history, and who uses accounting information. This is the fourth video for grade 11th. So let's start today's topic. As we all know, innumerable transactions take place in the business every day. All these transactions can't be remembered. Hence, it is necessary to record them. For this purpose, proper accounts are required to be maintained. Keeping proper accounts help the owner of the business to know the profit and the losses of the business and its financial position at the end of the year. Who are the users of accounting? Accounting provide useful information to the manager of the business for taking business decisions, and to the financial institutions taking the decision for granting a loan to the business unit, that at what extent they should provide a loan to any entity, to any business house. And to creditor, it provide information to decide whether to sell the goods to the firm on credit or not. And it also provides the information to the trade unions, to the customer protection associations and government. If we talk about the history of the accounting, it is assumed, it is believed that accounts are written since ancient times, and many evidence to prove this are also available. As we can study the ancient China, it is found over there. In Misr, it was found, and in Greek and Italian culture, account was found. And basically, if we talk about the present form of accounting, it was the Italian monk Luca Pacioli who for the first time in 1494 AD in his book on mathematics made presentation of currently in use double entry accounting system. Thereafter, accounting has become an integral part of life. The accounts of household expenses are also maintained in many houses. Let's talk about the meaning of accounting. Accounting is a process of identifying, measuring in the terms of money, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the business transaction, and communicating the accounting information, means reports, to the user of making correct decisions. In the light of this definition, it can be said that the business transaction which can be measured in terms of money are recorded in accounting. यानी जो चीज़ हम मनी में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उसी को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी. which can't be measured in money can't be recorded in accounting system. After recording, the transaction are classified. Classified means एक ही तरह की ट्रांजेक्शन को एक हेड के जो अंडर है कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल, हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे हैं, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं क्लास वाइज, कि ये 5th क्लास के बच्चे हैं, ये 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं. तो जो क्लास वाइज हम उन्हें डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, conclusions means profit and losses are drawn, so that the profit or the loss of business is ascertained and the financial position of the business can be known. तो साल के जो एंड में होता है, लास्ट में हम देखते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ताकि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसका पता चल सके. इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड. देयरआफ्टर दिस इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द यूजर, especially members of limited companies and other institutions in the form of report. तो उसके बाद हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है पास ऑन करते हैं हमारे जो मेंबर्स होते हैं कंपनीज के, उनको. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एम ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, to keep permanent records of all the transactions of the business, to show the financial effects of business transactions on the business,
सबसे पहला क्या है कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, क्योंकि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग बनाई ताकि हम उनको रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकें। और उसके अलावा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था, दैट इज़ टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बिजनेस, कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है उसका बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, क्या बिजनेस को वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी ट्रांजैक्शन या फिर लॉस की तरफ लेके जाएगी। एंड द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि जो भी लेन देन होता है उसे हम रिकॉर्ड कर लें, टू नो दैट and to know the true financial position of the business after determining the effect of all the transaction। सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद साल के जो हमारा लास्ट होता है, एंड पीरियड होता है ईयर का, तो उस वक्त हमें पता चल जाए कि बिजनेस में हमें क्या हो रहा है, क्या हमें लॉस हो रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें पता चलता है अकाउंट से। अकाउंटिंग जो है हमें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, to evaluate the profitability, means earning capacity of the business, and to provide accounting information during the accounting period। तो profitability जो है वह accounting period के लास्ट में जो है हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। तो अकाउंटिंग ही हमें बताती है कि हमारा मैनेजर कितना एफिशिएंट है। जितने हमारे अकाउंट्स अच्छे होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारे मैनेजर को जो है माना जाता है। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग बजट, जो बजट्स बनाते हैं, बजट ये नहीं सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, बजट हमारे यहाँ बिजनेस हाउसेस में भी बनते हैं। हम हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ अमाउंट जो है फिक्स कर लेते हैं। तो बजट हेल्प्स इन कंट्रोल द एक्सेस कंट्रोल to exercise the control over various activities of the business through budget। और बजट जो है उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उस पर कितना खर्चा आएगा, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि एक्चुअल में उस पर कितना खर्च आया। तो दोनों चीज़ों में जो बैलेंस करना होता है उस बैलेंस करने में हेल्प करती है हमें अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन अबाउट टैक्सेस। अकाउंटिंग से ही गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सो फ्रॉम all these points we can say that accounting is a language of business। Thus accounts provide useful information to the owner and the manager of the business and outside parties। They can take proper decisions on the basis of accounting information। If we talk about types of forms of accounting information, accounting starts with identification of financial transaction, as we all know that whether the transaction is related to money or not, कि जो ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं वो मनी से रिलेट कर भी रही है कि नहीं कर रही, तो उससे हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। द ट्रांजेक्शन विच आर नॉन फाइनेंशियल आर नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो नॉन फाइनेंशियल होगी, नॉन मॉनिटरी होगी, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी and financial transaction which can't be measured in the terms of money। Only those transactions which can be measured in the terms of money are recorded in the accounts। And what are the advantages of accounting? The very first advantage of accounting is to the owner of the business, means the owner of the business can get accounting information whenever required by maintaining the accounts। तो जो ऑनर है वो जब भी चाहे जो भी चाहे अपने बिजनेस के बारे में पता लगा सकता है जस्ट बाय अ लुक एट द अकाउंट्स। और उसके अलावा इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमें साल के लास्ट में अकाउंट की वजह से ही पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है, हमारे बिजनेस के एसेट्स क्या हैं, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये जो ईयर के लास्ट में जो हमें पता चलता है वो किस चीज़ से हमें पता चलेगा, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंटिंग हेल्प्स द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द बिजनेस टू एक्सरसाइज कंट्रोल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस और लाइबिलिटीज़ के बेस पे जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमारे जो है बिजनेस को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग।
एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हमारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस की पोजीशन अकाउंट्स शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने डिसीजन लेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टैक्सेस पेबल टू द गवर्नमेंट। accounting is also useful in planning about the taxes, for example income tax, sales tax etc. तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उसके बेस पे ही हम पता लगाते हैं कि हमने कितना जो है टैक्स जो है पे करना है गवर्नमेंट को। एंड इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग मॉरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज। मोर ओवर थेफ्ट, फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन कैन बी फाउंड आउट एंड कंट्रोल्ड। तो अकाउंट की वजह से हम जो है फ्रॉड्स को कम कर सकते हैं, हम थेफ्ट को कम कर सकते हैं, और जो मैनिपुलेशन होती है बिजनेस में उसको हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द बिजनेस वाइल सेलिंग द बिजनेस। तो अगर हमने अपने बिजनेस को सेल करना है तो उस वक्त भी हम अकाउंटिंग से ही पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, कितना हम चार्ज करें। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सेप्टेड एज एविडेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट को एज एविडेंस जो है एक्सेप्ट किया जाता है, हम इसे एज अ एविडेंस जो है किसी के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करंट ईयर्स इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड विद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड विद दैट ऑफ अदर फर्म्स। तो करंट ईयर की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं लास्ट ईयर के साथ। इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग। और हमारे जो बिजनेस है उसकी जो पोजीशन है उसको दूसरे के साथ अगर हमने कंपेयर करना हो तब भी हमें अकाउंटिंग ही हेल्प करेगी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट देयर आर मोर देन वन अप्रोचेस in accounts, more than one approaches for the same point. For example, for the material control, there are more than one approaches. There is LIFO method, there is FIFO method. Means last in first out method is there, and first in first out method is there. If suppose two firms are there, one firm is using LIFO method and another firm is using FIFO method, in that case comparison can't be possible. तो अकाउंटिंग जो है एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी हमें देता है, और हम अलग अलग ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो कंपैरिजन जो है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो हम कंपैरिजन है वो कर ही नहीं पाते। एंड सेकंड लिमिटेशन इज दैट इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द एविडेंस बट येट एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर ascertaining profits or losses. For example, estimating the useful life of an asset, bad debts, market price of closing stock, etc. अब जैसे अकाउंटिंग वैसे तो एविडेंस पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें जो है एस्टिमेट किया जाता है। कुछ चीज़ों को हम जो है सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पे ही लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि जो एसेट की यूजफुल लाइफ होती है उसको हम एस्टिमेट ही करते हैं, वो कोई एविडेंस तो नहीं होता कि 10 साल ही चलेगी पर्टिकुलर एसेट, तो वो हम क्या एज्यूम करते हैं, एजम्पशन बना के चलते हैं। और सेम तरीके से बैड डेट। अब बैड डेट ज़रूरी तो नहीं होता कि हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं अकाउंट्स में कि हमारा कुछ पैसा जो है डूब जाएगा। वैसे ही जब हमारे पास स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी जो हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो भी एक एस्टिमेट ही होता है कि ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की इतनी वैल्यू है, एक्चुअल में वो उससे कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह अकाउंट्स में जो है एस्टिमेट होता है, ये फुली एग्जैक्ट नहीं होता। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। सिंस अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, qualitative elements like quality of management, labor force, industrial relations, public relations are ignored. अब हमें पता है अकाउंटिंग में हम सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से रिलेट करती हैं। जो चीज़ें मनी में रिलेट ही नहीं करती, मनी में हम मेजर नहीं कर सकते, उनको अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो कई जगह पे जो क्वालिटी होती है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी, अगर आपकी मैनेजमेंट में क्वालिटी ही नहीं है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, लेकिन अकाउंट्स में उसको वेटेज नहीं दिया जाता। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसको वेटेज नहीं दिया जाता। पब्लिक रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, उसको भी हम जो है कंसीडर ही नहीं करते अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग की ये तीसरी जो है लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
The next is it ignores the effect of price level changes. Accounting statements are prepared at historical cost. Money as a measurement unit changes in value. Since price levels are not considered, the financial statements do not show correct financial status. अब क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होती है, रिकॉर्ड किया जाता है, जितने पे हमने कोई एसेट ली थी उस पर ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो मनी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, मनी की वैल्यू तो सेम नहीं रहती ना। जो 1 रुपये की वैल्यू आज है वो 5 साल बाद नहीं होगी, जो 100 रुपये की वैल्यू आज है वो 2 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि रुपये की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन अकाउंटिंग इसको कंसीडर ही नहीं करती। अकाउंटिंग ये मान के चलती है कि जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब है। अगर वो वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेगी, सेम वैल्यू मान के चलेगी जो एक्चुअल में नहीं है, तो उस केस में जो पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करती है अकाउंटिंग, वो 100% करेक्ट नहीं होती। और उसके अलावा जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको भी अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आप प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं करोगे तो ये तो श्योर है कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो 100% करेक्ट नहीं होंगे। Next is accounting may lead to window dressing. And what is the meaning of window dressing? The term window dressing means manipulation of accounts to conceal vital facts or to present better or worse financial position than actual. In this situation, income statement fails to provide true and fair view of the result of operations, and the balance sheet fails to provide true and fair व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि मैन्युपुलेट करना अकाउंट्स में। या तो हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट को छुपा लेते हैं, या क्या करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो एक्चुअल से हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसे दिखा देते हैं। एक्चुअल में हमारी एसेट्स इतनी नहीं थी, हमने बढ़ा चढ़ा के दिखा दी कि नहीं हमारी एसेट्स तो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो मैन्युपुलेशन हो गई। अगर अकाउंट्स को मैन्युपुलेट हम कर सकते हैं, जैसे हमारी बैलेंस शीटर्स में थोड़ा बहुत विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, हम अकाउंट्स के जो लूप होल्स हैं उसको यूज़ करके विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो इन केस अगर अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग हो जाती है तो उस केस में हम अपने बिजनेस की ट्रू और फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज फॉर द डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।